Nimra Bucha. Amna Haidarisani, so कब excited to be here. कभी चुड़ैल कभी कमली. हाँ. ये कैसा आप पे लेबल लगा? इतना सिलेक्टिव काम, इतना कोई जीनियस एक्टर हो और इतना सिलेक्टिव काम करे और फिर सडनली हम उनको देखें एक टीजर में, एक ट्रेलर में, कमली में. What's happening? Oh God, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिलता है काम और I don't believe जी जी that. जी बहुत बहुत थोड़ा मिलता है और जो थोड़े टेढ़े लोग होते हैं वो उनको अच्छा लगता है कि कोई टेढ़ी टेढ़ी चीजें वो बनाएं और जो फिर आपके उनको अंदर की कमली को पहचाने. जी 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 बिल्कुल और खास तौर पे आई वुड से कि सरमद खूसट साहब मुझे बहुत ही अजीब अजीब से काम में इन्वॉल्व करते हैं Right. और फिर वो किस्मत हमारी कोई अच्छी है कि वो फिर अच्छा बन जाता है वरना तो मेरे ख्याल में उनकी नीयत कोई इतनी अच्छी नहीं होती. ये बड़ा लोडेड कमेंट है. ये कहीं भी किसी तरफ मैं इसको लेके जा सकती हूँ. ले जाइए आप जहाँ ले जाना है. मगर why Kamli? Was it Sarmad? Was it the script? Was it your character? What made you sign up for it? I think Sarmad has a lot of moral pressure to cast me because he knows that I would be very upset if he didn't. But then I think when Kamli was being written at that time, I was very excited and supportive of the film coming out. At that time, मेरी बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं थी investment that I wanted to do anything Right. in it. But of course, when then he started talking about it, and also when we are not doing a project together, we pretend that we are not actors, and we have other aspirations के हम chef बनना चाहते हैं ठीक या है. property develop करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, and then suddenly it's actually a bit strange then when we start talking about acting again, and then we're like, oh, okay, so you know that I'm an actor, or you're a director, and that's awkward, right? And I think we have such an equal relationship that I actually don't like to see myself as that person who he would choose or Right. have any kind of directorial sort of authority over or something. But having said that, he comes up with something, and I think that it's on paper, it's always a bit frustrating to read the characters that have gone down well that I've done with Sarmad. So Manto, for example, Right. the character of Hamzad, very frustrating I felt when I saw it. I couldn't see what it later became. Right. And I think same in Kamli. But I think that sort of helps also. Right. Because, how can you go into something knowing what it's going to be like? Especially something like film, where so many factors come together to make that image, that magic. Right. So I think it's good to start with like zero kind of assumptions about it as well. And so you could say it's been kind of very lucky that these characters have become something bigger than the parts, the sum of the parts. आपने काम जो जब किया है सरमद के साथ, वो मेमोरेबल ही रहा है. ऐसा कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कि बंदा कहे कि नहीं ये ऐसा कि ये क्यों साइन किया. I think also with Sarmad, I did something which was a drama, which I mean, now we can say अच्छा इसमें ये मसला है और वो था और ये नहीं होना चाहिए था. But that was what kind of made people notice me, as a TV actor, because it was very popular. Right. People used to wait for it and watch it. Mera Yakeen, I'm talking about. Yeah. So we've done that kind of stuff. You've done that kind of stuff, and then of course it was Manto, और उसमें आप उनकी muse हैं. Yeah. And then there was Aakhri Station. Yeah. और ये बड़े heavy loaded projects हैं ये. Yes. Also Aakhri Station, I was like, okay, this is like an episode that I'm doing, and I'm in town, and let's just do it. And he's like, oh, would you want to do this? And then it was also like, again, very organic, like you're thinking on your feet when you're ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, and then of course Sarmad has to he decided to do a cameo as well in it, and that was also kind of fun. And so it was like, again, it was like no grand plan that this is how it's going to come out. I think it's never like that, and that's what's nice. हमें उर्दू में बात करनी चाहिए अंग्रेजी में? ज़्यादा उर्दू में ठीक है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. अगर मैं आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछूं भी तो आप उर्दू में जवाब, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. मेरी बिल्कुल नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है आपकी उर्दू, बहुत अच्छी है. मेरे शायद सवालात इतने अच्छे ना लगे उर्दू में, लेकिन आप जवाब उर्दू में दीजिएगा. तो आपने कमली का ट्रेलर हमने देखा, नो डायलॉग्स एट ऑल. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? इट्स अ साइलेंट ट्रेलर. कोई एक बंदा कुछ नहीं कह रहा और एक बड़ी मेनेसिंग सी उसकी म्यूजिक चल रही है पीछे. I mean, ये बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, क्योंकि ये फिल्म है और ये इमेज है, और अगर वाकई इतना स्ट्रॉन्ग इमेज है कि उसको अल्फाज की जरूरत नहीं है.
एक तरह से it's almost like there's a nostalgia जिसमें आप वो साइलेंट फिल्म वाले उसमें चले गए जहाँ पे परफॉर्मेंस इज की एंड म्यूजिक और वो सारा कुछ और आई थिंक I also want to see it as a protest of some kind. क्या हम डायलॉग नहीं बोलेंगे इसमें किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे सरमद? बस हमें करना तो बहुत सारी चीजों का चाहिए आजकल के आर्टिस्ट को तो बहुत प्रोटेस्ट करना चाहिए. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और मेरा ख्याल है कि सरमद का काम भी एक तरह का प्रोटेस्ट ही है. और सरमद का काम एक ऑब्जर्वेशन भी है जो कि आप जब फिल्मों की बात करते हैं और फिल्में बनाने की और फिल्में हमें क्या बनानी चाहिए और किस तरह की बनानी चाहिए, हमारा जॉनरा क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी फिल्म क्या होती है, तो मेरे ख्याल में फिल्म एक ऑब्जर्वेशन है. जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं उस वक्त की ऑब्जर्वेशन है और अगर वो ऑब्जर्वेशन हम सब मिलके कर रहे हैं और उसमें इमोशनली हम एंटेंगल हो रहे हैं उस चीज में, इन्वेस्ट हो रहे हैं, सो इन्वेस्ट हो रहे हैं, यू नो, एंड आई वुड इवन से एंटेंगल बिकॉज क्यों हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं. एक हम पे उसका एक जो असर हुआ है, आई थिंक अच्छी फिल्मों का यही होता है ना, जो आप पे एक अजीब सा असर होता है और आप चाहते नहीं है कि आप पे हो लेकिन आप पे हो जाता है. तो ये एक मेरे ख्याल में कामयाबी है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. निम्रा, आप परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं. मैंने आपको लाइव इंस्टॉलेशन करते हुए भी देखा है अमीन गुल जी के स्टूडियो में, और थिएटर भी है और टेलीविजन का काम भी आपने किया है और यू नो देयर इज म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, फिल्म भी है. आपको क्या ख्याल है, फिल्म को आजकल बड़े ब्लर हो गई हैं बाउंड्रीज कि जो टेलीविजन पे बन रहा है ऐसा लगता है हमारी फिल्में भी कुछ एक्सटेंडेड ड्रामाज हैं, फिल्में नहीं लगती. पाकिस्तान की बात कर रही हूँ. इस वक्त पाकिस्तान के लिए आप फिल्म को कैसे डिफाइन करेंगी, कैसी होनी चाहिए? मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इन चीज़ों से निकालें, इन डेफिनेशन से निकालें कि हमें किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए. हम फिल्म बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, क्या हम फिल्म बनाना चाहते हैं या हम ड्रामे बनाना चाहते हैं. अगर हम ड्रामे बनाना चाहते हैं तो हम बनाते रहें ड्रामे, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं और उनमें बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे ठीक ठाक भी हैं, कुछ देखने के काबिल नहीं है, लेकिन उसमें ये कंफर्ट है कि अच्छा आपने टीवी ऑन किया, रिमोट लेके आप लेट गए और आप पे कोई बहुत ज्यादा किसी चीज का असर नहीं हो रहा. और मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी में इतनी एंग्जाइटी है कि बहुत सारे लोग टीवी को इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी पे ड्रामे में क्या होगा. एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन स्ट्रेस नहीं देता आपको. लेकिन सिनेमा में एक आपको एक्टिव होना पड़ता है ना, एक तरह से कि आप घर से निकलेंगे, आप शायद कुछ लोगों को साथ लेके जाएंगे, बिल्कुल, आप पैसे खर्च करेंगे, बालशाल बनाएंगे, हो सकता है हम कभी बनाते कभी नहीं बनेंगे. मुझे याद है जब शाहरुख खान की वो फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, तो मैं इतना तैयार होके गई थी देखने के लिए. मुझे था कि पता नहीं शायद वो हमें स्क्रीन से देख लें, यू नो. सो आई थिंक ये सिनेमा में एक आप एक एक्टिवली उसमें एक शामिल होते हैं उस सारे एक्सपीरियंस में.